and welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I have Ronit with me, and I'm going to ask a very important question to him, that is types of visa in Germany. The reason for asking this question to Ronit is he is living in Germany since 13 years and now he is, citizen of Germany. So I think he knows better than us. So over to you, Ronit. So hi guys, I'm sitting here because to guide you with the proper information on different types of visa. So for example, if you are traveling to Germany for the first time, so you might have a lot of confusion of what sort of visa you can apply. For example, you have a student visa. If you are traveling to Germany on study base, and then you come into this category, a student visa. So if you want to travel to Europe and just not Germany, then you are eligible to apply for a Schengen visa. So this visa, what it does is, this is a EU rule. So Schengen visa allows you to travel within the Europe and European countries. So you don't need visa specially for a different country. Let us say if you are traveling to Germany and you have applied a Schengen visa, that is a visit visa to Germany, then you also can able to travel to other parts of a country within Europe. For example, आप यहाँ इंडिया से जर्मनी गए और जर्मनी से आपको कहीं दूसरी यूरोपियन कंट्री ट्रैवल करनी है, तो सो शेंगन वीज़ा क्या होता है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. This is the rule that you can travel around Europe with this Schengen visa. So ये दूसरी sort of visa हो गई. So now if you are looking for a professional career in Germany, तो आप job seeking visa apply कर सकते हो. So yes, it is possible that if you have worked in India and you are looking to have to start your professional career in Germany, then it is also possible that you with the kind of experience you have, and you can able to apply for job seeking visa. So यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 6 महीने के लिए आपको job seeking visa का आपको दिए जाते हैं. और आप जर्मनी में लैंड होने के बाद you have 6 months where you have to show some sort of amount in your bank. So I also have this one confusion. I think we a lot of time heard about this sponsorship visa which is provided by companies and all these things. तो जो आप visa की बात कर रहे हो, that's a different kind of visa. I mean, let's say अगर आपके पास job नहीं है, what I have the sense is कि let's say if कोई company आपको job दे रही है, then you can apply for this. Exactly. So यहाँ पे different sort of visa हो गया ये. So मैं पहले आपको job seeking visa का confusion clear कर देता हूँ. So job seeking visa के लिए आपको कोई company की sponsorship हो गई या वरना you don't need any sort of invitation. So if you have an educational background and then you have experience, you can able to apply for job seeking visa. So this is something a category in types of visa in Germany. You can apply for job seeking visa. So you will give it for 6 months. तो यहाँ पे 6 महीने के लिए दिया जाता है. तो आप इन जर्मनी में लैंड होने के बाद आपको 6 महीने you have that you can apply for you can do the application, job, आपके लिए जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है ना, आपको अकोमोडेशन दिखाना चाहता है, दिखाया दैट इज़ इम्पोर्टेंट अकोमोडेशन. और यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाना ज़रूरी होता है 6 महीने के लिए. सो दीज आर समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. तो आप ये 2 चीज़ अगर फुलफ़िल करते हो तो आपको जॉब सीकिंग वीज़ा का चांसेस मिलने बहुत ही हाई हो जाता है. लेट अस से अनदर सॉर्ट ऑफ वीज़ा यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो इंडिया में रह के आप कंपनीज़ को अप्लाई करते हैं और या आपको एप्लीकेशंस करते हो और आपको जॉब का ऑफ़र मिल जाता है, या वरना
तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई स्पॉन्सरशिप की कंपनी से कोई रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हुए आप जर्मन कंपनीज़ के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ की HR जो होती है आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो आप उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप यहाँ पे VFS, जो हम लोग पिछले वीडियो में बात की थी, आप हाउ यू कैन मेक एन अपॉइंटमेंट इन VFS, सो उसी में आपको कैटेगरी मिल जाता है कि आप नेशनल वीज़ा के कैटेगरी के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई वीज़ा स्पॉन्सर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होता है, जैसे UK का और US का जो कल्चर होता है, दैट योर कंपनी शुड स्पॉन्सर यू टू गेट अ वीज़ा। तो यहाँ पे बहुत अलग सारी दूसरी कंपनीज़ हो गई, डिफरेंट कंपनीज। सो मोस्टली एक दो कंपनी पूछ लेते हैं कि आपके पास कोई वीज़ा है या कोई, तो वो स्टेज में ही आपको रिजेक्शन आ जाती है। तो वंस यू गेट इनटू दिस कंपनी, तो आपको कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट से आप कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक नया वीडियो बना सकता हूँ, आप कैसे यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इंडिया में बैठ के जर्मन कंपनीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसके लिए इफ़ यू जस्ट वांट टू नो, यू कैन जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम इट, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन related to universities in Germany, how to apply, how to avail all these scholarships, so उसके लिए भी आप reach out कर सकते हैं। Definitely. So I mean, I think these all are the visas, या कुछ अभी बचा हुआ है? नहीं, these are something most Indians apply for these visa, but Schengen visa के अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल फैमिली विजिट के लिए, अगर कोई आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपके फैमिली कोई रह रही है, तो आपके लिए ना वहाँ से आपको फिनेंशियल सपोर्ट की लेटर चाहिए होती है, जो डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको स्पॉन्सर करे फॉर एग्जांपल, तो उसको फर्फ्लिस्टुंग एरक्लेयरिंग बोलते हैं। तो ये आपको लेटर चाहिए होता है अगर आप किसी फैमिली को ट्रैवल कर रहे हो या विजिट कर रहे हो जर्मनी में, तो उनके साइड से आपको ये स्पॉन्सरशिप लेटर इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल बिजनेस भी शेंगन के वीज़ा के अंदर ही आता है। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होता है शेंगन वीज़ा के कैटेगरीज के अंदर। तो these are something important visa types that most of the Indians apply to to travel to Germany. तो ठीक है। So I think pretty much हमने कवर किया। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, बट रोनित ऑलरेडी मेंशन कि हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि जब यहाँ से आप ऑलरेडी जर्मनी में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, तो कितना ईजी है, डिफिकल्ट है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो rather than we discussing in this video, we'll make a separate video. So till then, do not forget to like, share and subscribe.